Hello everyone, this is Kea and welcome to my channel. So in today's video, I'm gonna gaslight you. I'm gonna convince you. At the end of this video, you will be convinced by any way to start a YouTube channel. Abhi you would say, why we would start a YouTube channel? Then I would say just watch the video and get your answers. So the first reason is publish yourself. अभी I would say कि YouTube is not like the other social media platform कि जहाँ पे आपको abuse किया जाए, जहाँ पे आपको gaslight किया जाए और जहाँ पे आपको use किया जाए. But YouTube is a healthy social media platform where you can share your own thoughts, your own ideology, your own philosophy, your own self, your own interest and your own creativity. Abhi I would also add one another philosophy to this thing. मैंने सुना हुआ है कि जो अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को, आप जो क्या हो, आपका हॉबीज, वैल्यूज, एथिक्स एंड वो सब है, वो आप पोर्ट्रे नहीं करोगे किसी को, तो the other person will be looking to you on the basis of just your looks, your physical appearance. And क्या आप चाहते हो कि आप अपने physical appearance और physical look के हिसाब से judge हो? No, right? And हमारी जो identity है वो हमारा सिर्फ looks नहीं है. We are more than our looks. So for publishing that all the things that we are actually, we have to publish this thing at any platform. Like we could do things like we can write books, we can publish newspaper articles, we can be a public speaker and speak up our own thoughts. The easiest way is to make a channel, to make a content about your own philosophy. अगर आप content बनाओगे जिसमें आपको खुद को पोर्ट्रे करते हो, आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो लोगों के साथ आपको रहना है. आपके जैसे माइंडसेट के लोग, आपके जैसे विचार रखने वाले लोग, the persons which you desire to be around with, you can attract to those people. You can make a community, you can help to them, you can receive help from them, and you can share the ideas, creativity and foster, nurture your own self through this thing. To make it more understandable, let me share you some examples. So अभी imagine करो कि कोई एक person है जो कि अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि he is a very richest person in the world. वो अपने पैसों को, अपने materials like cars, bungalows, villas, jets and वो सब पोर्ट्रे करता है. अभी what do you think कि अच्छे लोग इस सब चीजों से अट्रैक्ट होने वाले हैं? No, the people he will be attracting is the people who will attract to the materialistic wealth. जो कि पैसों के लालची लोग हैं, जो पैसों को अपने लाइफ का सेंटर मानते, वैसे लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा. क्योंकि the thing you will present, the thing you will publish, the kind of people, the kind of community you will gonna attract. The third point I will be considering for starting YouTube channel is become a king or queen. Abhi, when you make videos on YouTube, like on constant basis, on constant improvement, not instantly but gradually, you will become a person जिसकी पर्सनालिटी, जिसका एक्सप्रेशन, जिसका बोलने का स्टाइल, जिसका चलने का स्टाइल, जिसका कुछ भी करने का स्टाइल सबसे अलग होगा. Yes, and when you become this person, you will be stand apart from the crowd. Yes, आप कुछ करो या ना करो, आप में ऐसी कुछ बात होगी कि जिससे ना आप भरी भीड़ में
सबसे अलग दिखने वाले हो। एंड इस चीज़ को सोच के मैं इतना खुश हो जाती हूँ, इतना प्राउड फील करती हूँ कि या मैं हूँ सबसे अलग, मैं हूँ कुछ। एंड ये वाली फीलिंग आपको भी आएगी व्हेन यू विल स्टार्ट YouTube and you will deliver the content which gives value on the constant basis and on the constant improvement. Another point is achieving the creativity. अब when you make videos on YouTube ना, ऐसे ही वीडियोस नहीं बन जाता है। लाइक फर्स्टली आपको आइडियाज़ ढूंढना होता है, सेकेंडली आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है, थर्डली आपको शूट प्लान करना होता है कि किस तरह से शूट करोगे एंड कौन सी चीज़ आप बोलोगे, फिर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होती है, देन आपका रियल शूट होता है, फिर एडिटिंग, फिर थंबनेल एंड वो सब बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको करना पड़ता है एंड देन आपका एक वीडियो बन के अपलोड होता है। ये सारी चीज़ ना हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती है। अभी आप लोग सोचोगे कि राइट ब्रेन को एक्टिव करके क्या फ़ायदा है। सो आई विल से कि हमारे पास ना दो ब्रेन होता है, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल चीज़ें एंड रैशनल चीज़ें होते हैं उसको रिलेटेड होता है, एंड जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिविटी एंड वो सारी चीज़ को रिलेटेड होता है। सो व्हेन वी प्रैक्टिस द स्क्रिप्ट राइटिंग, द एडिटिंग, द आइडियाज मेकिंग एंड ये सारा चीज़ हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में नहीं होता है। एंड अगर हम यूट्यूबर बन भी जाते हैं तभी भी हमें ये सारी चीज़ को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते होते हैं। सो इसकी वजह से हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है, एंड व्हेन हमारा राइट ब्रेन बिकम्स एक्टिव हमारी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। आप अपनी बात को सीधे नहीं पहुंचाओगे तो आप अपनी बात को क्रिएटिव वे में पहुंचा सकते हो। आप अपने थॉट और माइंडसेट को सीधा डालोगे तो उनके दिमाग से बाउंसर से लेके निकल जाएगा, लेकिन जब आप आपने आपके थॉट को क्रिएटिव वे में उसके दिमाग में डालोगे तो वो उसके दिमाग में घुस ही जाएगा। जब यू विल यूज योर क्रिएटिविटी टू मेक फन एंड एंटरटेनमेंट, उनको आपके वीडियो पे इंटरेस्ट आएगा एंड आप भी एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाओगे जो भी एक इंटरेस्टिंग हो। एंड क्रिएटिविटी तो यार अब खुद ही सोचो, क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा फायदेकार है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अनदर पॉइंट इज सॉफ्ट स्किल्स। अभी सॉफ्ट स्किल्स में ना 3 काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स आपकी बहुत नर्चर होगी इफ यू मेक द वीडियोज ऑन यूट्यूब। सो द फर्स्ट थिंग इज साइकोलॉजी। अभी हम जब अपने यूट्यूब पे वीडियोज बनाते हैं ना तो हम बस ऐसे नहीं कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिला और ऐसे ही बोल जा रहा है। यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाना है तो हमें जो हमारी ऑडियंस है उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उनके रिटेंशन स्पैन को समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से हम अपने इंफॉर्मेशन को, हम हमारे कंटेंट को डिज़ाइन करेंगे कि जिस तरह हमारे कंटेंट को इस तरह से कंज्यूम कर पाए कि उनको इजीली समझ आ जाए, वो उनका थ्रू आउट द वीडियो वो स्टिक रहे और उनका जो भी नॉलेज हो वो बढ़े। तो ये सारी चीज़ समझने से हमारी जो ह्यूमन स्किल्स है, जो कि साइकोलॉजी, वो बढ़ती है। हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनके थिंकिंग पैटर्न को, उनके सोचने के तरीके को, उनके समझाने को तरीके को और उनके समझने के तरीके को हम जान पाएंगे। और हमारी जो ह्यूमन स्किल्स है, हमारे जो रिश्ते निभाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, फैमिली से बातें करते हैं, लोगों को मिलते हैं, वो सारी चीज़ को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं इफ़ वी नो द साइकोलॉजी थ्रू दिस थिंग। Another soft skill which will be nurtured through this process is communication skills और presentation skills। अभी जब हम ऐसे कैमरा को रख के बोलते हैं ना तो हमें किस तरह से बोलना है वो हमें आता है। लाइक हमें किस सेंटेंस में किस तरह से हमारे इमोशन शो करना है, किस जगह पे हमें पॉज लेना है, किस पेज में बातें करनी है,
हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे होंगे, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, हमारा टोन किस तरह से स्विच करना है, किस तरह से हमें ह्यूमर क्रिएट करना है और किस तरह से हमें डीप टॉक्स को बोलना है। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा चीज़ इम्प्रूव होगा, इवॉल्व होगा और एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हम डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है कि कम टाइम में या फिर लिमिटेड टाइम में हमें कितना कंटेंट, किस स्ट्रक्चर में, किस तरह से, किस चीज़ को ज़्यादा बोलना है, किस चीज़ को कम बोलना है, किस चीज़ को एलिमिनेट करना है, किस वर्ड को ऐड करना है, वो सारा चीज़ हमें डेवलप होगा। एंड द थर्ड सॉफ्ट स्किल इज स्टोरी टेलिंग। अभी स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज़, एक ऐसी स्किल है कि जो आपका जो कंटेंट है वो किस तरह से बोलना है, आपकी जो स्टोरी है वो किस तरह से बोलोगे आप कि जिससे सामने वाले लोग आपकी बातों में उलझ जाए। वो सॉन्ग है ना, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। वैसे अगर आप वीडियोस बनाते हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि किस तरह से बोलना है, किस वर्ड को इंक्लूड करना है, किस एक्सप्रेशन से बोलना है और किस वे में बोलना है। स्टोरी टेलिंग के आर्क्स होते हैं, लाइक कौन से टाइमिंग में कौन सा पंच डालोगे तो अटेंशन फिर से आएगा, कौन सी टाइमिंग पे अटेंशन डीप में होता है तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, फिर से अटेंशन को गैदर करने के लिए क्या चीज़ बोलनी पड़ेगी, कौन सा कंटेंट को आगे रखना है, कौन सी चीज़ को पीछे रखना है, कौन सी चीज़ को बीच में रखना है, कौन सी चीज़ को हाईलाइट फोकस करना है और कौन सी चीज़ को हमें लेस फोकस दिखाना है। ये सारी स्किल्स स्टोरी टेलिंग की स्किल होती है। वो सिर्फ आप वीडियोस रिकॉर्ड करोगे या फिर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आ पाएगी। एंड ये स्किल को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये स्किल को आप पब्लिक स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो। ये स्किल्स से आप जो स्टोरी बोलोगे अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को और किसी को भी, तो वो लोग भी इंटरेस्टिंग वे से सुनेंगे इनको एंड वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, उनको भी आप पसंद आओगे क्योंकि आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स अच्छी होगी। अनदर रीज़न फॉर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल इज स्ट्रक्चर योर थॉट्स एंड योर स्पीकिंग। अभी जो हमारे थॉट्स होते हैं उसको स्ट्रक्चर तब मिलता है जब वी प्रैक्टिस द थिंकिंग एंड वी हैव क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग। अभी YouTube पे हमारी थिंकिंग प्रैक्टिस इस तरह होती है कि व्हेन वी फाइंड द आइडियाज, व्हेन वी थिंक अबाउट द plans, the content we gonna deliver, it practice our muscle for thinking and it also make our brain do exercise for generating the new ideas. उसके बाद हमको जो clarity मिलती है that is when we write our ideas on scripts and when we make the plans of shoot and when we make the plans of whole video and how we gonna deliver the content in that video. And when our brain start practicing the creativity and practice the clarity, हमारे thoughts को, हमारे speaking को एक structure मिलता है। पहले जब हम ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हमें पता नहीं होता है तो फिर हम कुछ भी ऐसे बोल जाता है जिसका कोई सेंस भी नहीं बनता, कोई चीज़ आगे चली जाती है, कोई चीज़ पीछे चली जाती है, जो टोन होता है, जो वे होता है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता। बट व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस थिंग्स ना, हमारे थॉट्स स्ट्रक्चर में आते हैं। उसके बाद हमारी स्पीकिंग का भी स्ट्रक्चर आने लगता है धीरे धीरे, कि जैसे हम अपनी स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो जब हम वीडियो बनाते हैं तो ऐसे पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ते नहीं है और ऐसे जैसे रटे हुए नहीं बोलते हैं, राइट। वी स्पीक कि हम हमारे कैमरा के सामने देख के बोले, और ये जब बोलते हैं वो इतना स्क्रिप्टेड नहीं होता है कि हम जो लिखा हुआ है वही बोलते हैं। कुछ चीज़ हम बोलते बोलते हमारे खुद से हमको इवॉल्व करनी होती है। तो ये सारी चीज़ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर हमें ऐसे ही कोई टॉपिक दिया जाए तो हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है,
वो चीज़ हमारी स्ट्रक्चर में आएगी। हमारा जो बोलने का स्टाइल है, समझाने का स्टाइल है, वो अच्छा होगा, बेटर होगा दिन ब दिन। एंड इस सारी चीज़ से एक और भी एक फ़ायदा है कि आप ना एक लिमिटेड टाइम में कितने अच्छे से वैल्यू को डिलीवर करोगे, वो चीज़ को आप सीख सकते हो। अभी लास्ट पॉइंट आई विल कंसिडर इज बीट द कैमरा शाइनेस। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो तो वी ऑल नो कि हमें कैमरा के आगे बोलना होता है। सो इससे क्या होगा कि आपका जो शाइनेस है कि लोगों के सामने कैसे बोले, पब्लिक के सामने कैसे बोले, अथॉरिटी, टीचर्स, इन लोग के सामने कैसे बोले, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कैमरा तो एक ऐसा चीज़ है कि जो पर्सन नहीं है, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो एक गैजेट है, राइट। सो उसके सामने हम प्रैक्टिस करके हम दूसरे सारी चीज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड कैमरा साइनेस हम ख़त्म करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, हमें इमोशन कैसे डालने हैं, हमें स्पीकिंग कैसे करना है, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ हमें कैमरा साइनेस जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे आते जाएगा। दिस इज़ ऑल द इनसाइट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप कि ये ईयर आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो। आप इस ईयर को एक मेमोरेबल ईयर बना दो अपने इम्प्रूवमेंट की जर्नी का, कि जिसके आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट की बारिश हो। एंड यस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड see you for the next video and bye bye.